Good morning, dear students. As all of you know, we are all going through COVID-19. So it's not possible to have a face-to-face teaching mechanism here. So from today, we are going to start our session of first semester. So I welcome you all in this session, that is semester 1. Now in this semester 1, myself Sushma Thakre oblique Divya Bankar, Sushma Bankar. I welcome you all to this our renowned college, and I am going to teach you inorganic chemistry. In that, first we will go through Unit 3 and Unit 4. In the previous video, I told you about the syllabus. You might have gone through that syllabus. According to that syllabus, the Unit 3 is comprising of two subtopics, that is S block elements and P block elements. So now today we are going to start the A part, that is S block elements. Now if you have a recap of our periodic table, modern form of periodic table, just a rough diagram I am showing you. In that, this type of modern form of periodic table is there, number of columns are there, number of rows are there. So groups are there, periods are there. How many groups are there? 18 groups. Periods are there, 7 periods are there. So according to that, the elements are arranged. Now if you see this word, you may have your 12th standard or 11th standard topics in your mind, that there are 4 blocks in modern form of periodic table. This type, that is very left side, is S block elements. The very right side is P block elements. The middle portion is D block elements, and at the bottom we are having lanthanides and actinides. They comprise F block elements. Okay, why we are naming them according to that? हम किस हिसाब से उन्हें SPDF ब्लॉक्स में कंप्राइज कर रहे हैं या अरेंज कर रहे हैं? As their outermost shell electrons are present in S orbital, then they will come in S block elements. If the elements atoms electrons, their outermost electrons comes in last shell is the last shell is comprising of P subshell, then that element will be arranged in P block element. Similarly for D and F block elements. As you may have came through the shapes also in previous classes, that SPDF orbitals are there. So that orbitals are basically giving the idea for various elements to have their arrangement in periodic table. उस अरेंजमेंट जिस अरेंजमेंट के हिसाब से ये एलिमेंट्स अरे हुए हैं एस में, पी में, डी में या एफ ब्लॉक में, उनका अरेंजमेंट आउटरमोस्ट शेल में कैसा है उस पर डिपेंड है. अगर आपको याद हो, दिस इज़ द न्यूक्लियस. सपोज न्यूक्लियस से ये जो शेल्स होते हैं, दे आर सर्कुलर इन शेप. ओके, तो ये शेल्स होते हैं, उन शेल्स में भी सब शेल्स होते हैं, यानी कि ऑर्बिट्स में होते हैं ऑर्बिटल्स. उन ऑर्बिटल्स को हम कंप्राइज करते हैं एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स में, है ना. तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर कोई एलिमेंट है उसके आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, तो वो एलिमेंट अरेंज होगा एस में, एस ब्लॉक में. तो इस हिसाब से हम उन्हें ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं. आई होप आपको ये सब समझ गया होगा. सो नाउ वी विल कम टू आवर एक्चुअल टॉपिक. ओके, जब हम एस, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स. सो नेचुरली इन दिस वी विल टॉक अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स टोटली. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, वो जब किसी कंपाउंड के साथ या किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, हाउ इज़ देयर एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया, जो उनके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करती हैं,
कैसे आप उन्हें आइडेंटिफाई करोगे, एंड सो मैनी थिंग्स. सो वी विल गो थ्रू दैट वन बाय वन. नाउ वी विल जस्ट सी दैट एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेसिकली होता क्या है. द एलिमेंट्स विच आर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन in their s orbital. If the elements are having one electron in their outermost shells s orbital, outermost shell के s orbital में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ns1. उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ns1. And if the element which are having two electrons, if they are having two electrons in s orbital, then they will have general electronic configuration as ns2. n मतलब number of shells. मैंने आपको अभी बताया ये जो number of shells हमने बनाए हैं, ये जो shells हैं वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. ये हो सकता है ना. तो ये n जो है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखाता है, और s जो है वो ऑर्बिटल बताता है. तो s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी वैसे भी आपको पता है कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2. सो 2 इलेक्ट्रॉन से ऊपर उसमें आएंगे नहीं, तो एक तो उसमें या तो एक ही 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो उस हिसाब से भी s ब्लॉक जो है दो भागों में बढ़ जाएगा. जो पहला पार्ट है, मतलब पहला जो कॉलम है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो कहलाएगा, वो ग्रुप कहलाएगा फर्स्ट ए ग्रुप. ओके. और ये जो सेकेंड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके s ऑर्बिटल में, वो कहलाएगा सेकेंड ए ग्रुप. ओके. सो नेचुरली दिस s ब्लॉक इज कंप्राइजिंग ऑफ 2 मेन ग्रुप्स, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप. फर्स्ट ए ग्रुप का क्या स्पेशल कैरेक्टर, अब यहीं कहीं आप इजीली इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि फर्स्ट ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, सेकेंड ए में कौन से आएंगे. और फर्स्ट ए और सेकेंड ए एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहेगा. इनकी पोजीशनिंग कहाँ है एस ब्लॉक में, पहला वाला फर्स्ट ए और उसके बाद वाला सेकेंड ए. अब फर्स्ट ए में कैसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका कॉन्फ़िगरेशन ns1 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सेकेंड ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2. ओके. अब जैसे अब हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं ns1 में. फर्स्ट ए में कौन आ सकता है, तो अगर आप हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन वेरी फर्स्ट एलिमेंट है ना, यहाँ एक अकेला रहता है, फिर यहाँ हीलियम आ जाता है, इफ़ यू रिमेंबर, है ना. तो हम उसको कैसे लिखते हैं 1s1. ओके. यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसका एटॉमिक मास भी 1 है ना. तो इसके जो एटॉमिक नंबर है 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे 1s1 एज पर एटॉमिक नंबर. चलो और दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. यानी लिथियम आ गया, लिथियम का फॉर्मूला है Li, एटॉमिक नंबर क्या है 3, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे 1s क्या आएगा 1s2, फिर सेकेंड शेल में जाएगा 2s1. अब ये पहला हो गया, पहला लेफ्ट टॉप टू बॉटम में जाएंगे, फर्स्ट कॉलम कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसका सेकेंड पार्ट, है ना. तो ये लिथियम हो गया. सिमिलरली आप सोडियम पे जाओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11. तो ये लिथियम क्यों यहाँ आया, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो 2s1 है. 2 यानी कि शेल नंबर है 2, और 1 यानी कि उसके जो s ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1. तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ है. चलो सोडियम को देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p. देखो ऊपर एडिशन करते जाना है, 2 + 2 4. अब p की कैपेसिटी कितनी है 6. पहले आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 + 2 4, 4 + 6 10. अभी सेकेंड शेल में और है क्या, सेकेंड शेल में 2 ही सब शेल्स आते हैं s और p. थर्ड शेल में sp आता है, तो अब थर्ड शेल में जाएंगे हम 3s1 आ गया. 2 + 2 4, 4 + 6
10, 10 + 1 11 आ गया हमारा एटॉमिक नंबर। अब यहाँ देखो थर्ड शेल में s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज़ कमिंग अंडर फर्स्ट ए ग्रुप। अब सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। चलो लेते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में लिखेंगे 1s2 2s2 हो गए सीधे सीधे, क्योंकि s की कैपेसिटी 2 है मैक्सिमम, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन तक डाल सकते हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हर शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। ये ऑलरेडी आपको 11th में हो चुका है। सो एज जस्ट अ रिकैपिटुलेशन आई एम टेलिंग यू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इनको आइडेंटिफाई करोगे। वैसे ही मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, रेडियम है, ये सारे जो है एलिमेंट्स ये किस में आते हैं? सेकेंड ए में आते हैं। फर्स्ट ए में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम और फ्रेंशियम या फ्रेंशिनियम, आप जिस तरह से उच्चारण करें। तो ये सारे हो गए फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ के आ गया होगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। We will meet in the next video. Thank you.